Hello friends, myself Rasika Pagaria. In last lecture, we were studying about the characteristics. Then we studied the nature. And there are only three characteristics, that is complexity, consistency and flexibility. Then we studied the nature of ideology, that is a set of ideas, a way of thinking, encompasses all aspects of a nation, ideal if not only a group of people but even that of an individual person. It stands for an action oriented thought. Now, the next we studied the role and significance of ideology, that is ideologies work as the mainspring of political action. Ideologies make human lives meaningful. Then political ideologies hold political communities together. Political ideologies causes tension. Ideologies influence all aspects of social life. Next, sixth one is use as a tool. Now we are going to study the scope of ideology. The scope of ideology includes idealism, liberalism, Marxism, fascism, democratic socialism, Gandhi's thought, which are explained below in details. Idealism. Idealism is the category of philosophical system that claim reality is dependent upon the mind rather than independence of the mind. See, आइडियलिज्म में क्या बोला है, ये एक सिस्टम है जहाँ पे अपन बोलते हैं कि रियलिटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन माइंड. रियलिटी जो भी है वो अपने दिमाग को समझनी चाहिए रादर देन इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड. रादर देन आपका दिमाग कितना इंडिपेंडेंट है इस पर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. अपने दिमाग को पता रहना चाहिए कि डिपेंडेंट कितने हैं अपन. एक्सट्रीम वर्जन ऑफ आइडियलिज्म डिनाई दैट any world exists outside of our mind. See, extreme version of idealism क्या denies that any world exists outside of our mind. See, इसके अंदर अपन क्या सोचते हैं, अपने दिमाग के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है. ये क्या है, we should deny this. Narrower version of idealism claims that our understanding of reality reflects the working of our mind first and foremost, that the properties of objects have no standing independent of the minds perceiving them. See, narrower version मतलब एकदम बड़ा वर्जन ऑफ आइडियलिज्म क्या है, दैट आप रियलिटी को समझो, उस हिसाब से अपना दिमाग काम करेगा, राइट. और उसके बाद आप फॉरमोस्ट क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट हैव नो स्टैंडिंग independent of the minds perceiving them. Then next is the liberalism. Liberalism is a political philosophy or worldwide founded on ideas of liberty and equality. Liberalism क्या है, ये एक political philosophy है, right. Liberalism is a political philosophy और worldwide founded, या ये पूरे worldwide found हुआ है idea of liberty and equality. मतलब पूरे वर्ल्ड में ये आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर्म हुई है. द फॉर्मर प्रिंसिपल इज स्ट्रेस्ड इन क्लासिकल लिबरलिज्म while the latter is more evident in social liberalism. See, the former principle जो actual principle है, it is stressed in classical liberalism, while बाद में का क्या है, it is based on the evidence in social liberalism. Liberal espouse a wide area of views depending on their understanding of this principle. See, liberals espouse, liberals यानी क्या है, ये एक बहुत बड़ा है, and it depending upon their understanding of this principle, and it depends upon the understanding of the principle, but generally they support ideas and programs such as freedom of speech. बट वो क्या आइडिया सपोज करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, कौन सी आइडियाज इसमें दे आर मोर सपोर्टिव, दैट इज़ द आइडिया सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मार्केट, सिविल राइट्स, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, सेक्युलर गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन. सी, यहाँ पे कौन सी आइडिया अपन सपोज टू बी यूज़ करते हैं, वी यूज़ द आइडिया सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of press, freedom of religion, freedom of market, democratic societies, secular government and international cooperation. Now next is the Marxism. Marxism is a strand of Marxist theory that places history at the center of its analysis. See, Marxism क्या है, is a strand of Marxist theory है. ये एक theory है जिसके अंदर क्या है, it places the history at the center of its analysis.
वो हिस्ट्री को कहाँ रखता है, हिस्ट्री यहाँ पे वो फोकस करता है हिस्ट्री पे. इट वॉज डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट अ हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ मार्क्सिस्ट analysis in the debate on the origin of capitalist. See, it was developed as a reaction against a historical models of Marxist analysis in the debate on the origin of capitalism. See, it was developed as a reaction. ये एक reaction के जैसे develop हुआ against बहुत ज़्यादा historical model of Marxist analysis in the debate on the origins of capitalism. The PM Criticus brought social agencies and class conflict to the center of Marxist. See, the PM brought क्या है यहाँ पे, social agency आई है and class conflicts to the center of Marxist. In this context, Robert Brenn and Alan Wood founded PM as the distinct approach to rehistorize and repolitics the Marxist project. See, इसी context में क्या बोला है, रॉबर्ट ब्रैनर एंड एलन वुड दे फाउंडेड एक अप्रोच बनाया रीहिस्टोरिक एंड रिपोर्टाइज द मार्क्सिस्ट प्रोजेक्ट. इट वॉज अ मूवमेंट अवे फ्रॉम स्ट्रक्चरलिस्ट एंड टाइमलेस अकाउंट टूवर्ड्स हिस्टोरिकल स्पेशलिटी एज कंटेस्टेड प्रोसेस एंड लाइव प्रैक्टिस. सी, यहाँ पे क्या है, ये एक मूवमेंट है जो प्रॉपर स्ट्रक्चरलिस्ट है एंड टाइम अकाउंट्स है टूवर्ड्स द हिस्टोरिकल. लाइक हिस्टोरी के ऊपर एक टाइम अकाउंट से स्पेसिफिक कंसेंट है एंड इट इज़ प्रोसेस एंड लाइव प्रैक्टिस. देन फासिज्म. फासिज्म इज द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम राइट विंग. फासिज्म क्या है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ, एक फॉर्म है फासिज्म भी क्या है, इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम राइट विंग्स आइडियोलॉजी that celebrate the nation or the race as an organic community translating all other loyalties. See, यहाँ पे फासिज्म क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम राइट विंग. ये एक राइट विंग का एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है जो रेस वगैरह नेशन या फिर कोई रेस को सपोर्ट करता है सो दैट देयर एवरीथिंग गोज ऑन इन अ प्रॉपर लॉयल्टी वे. इट एम्फसाइजेस अ मिथ ऑफ नेशंस और रेशियल रीबर्थ आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन और रिस्ट्रक्चर. सी, ये क्या बोलता है, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है किसी कंट्री में तो क्या होता है, कंट्री का फिर से रीबर्थ होता है. राइट, कब रीबर्थ कब होता है, जब सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर से सब चालू होता है, दैट इज़ द रीबर्थ. तो ये काम में आता है. सो दे हैव सेड कि इट एम्फसाइज अ मिथ ऑफ नेशंस. लाइक नेशन में जो भी प्रॉब्लम आई थी, रेशियल रीबर्थ हुआ, रेशियल का सारा वापस रीबर्थ हुआ आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन और डिस्ट्रक्शन. टू दिस एंड फासिज्म कॉल्स फॉर अ स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन. अब तक क्या हो रहा था, अब फासिज्म कॉल्स फॉर अ स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन अगेंस्ट साइंस ऑफ मॉरल डिक्लेयर सच एज इंडिविजुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म एंड सीक टू अर्ज अलाइन फोर्स एंड ग्रुप दैट थ्रेटन्स द ऑर्गेनिक कम्युनिटी. टू दिस एंड क्या हो गया, Fascism calls for a spiritual revolution against the signs of moral decay such as individualism and materialism and seek to purge align force and group that threatens the organic community. Fascism turns to celebrate masculinity, youth, mythical unity and the regenerative power of violence. See, fascism क्या बोल रहा है, fascism turns to celebrate masculinity, youth, mythical unity and the regenerative power of violence. Often, but not always, it promotes racial superiority doctrines. से often, कभी तो भी, but हमेशा नहीं, ये क्या करता है, it promotes racial superiority doctrine, ethical perception, imperialist expansion and genocide. अब क्या होता है, कभी तो भी क्या करता है, ये थोड़ा सा रेशियल सुपेरिटी का क्या उसको सपोर्ट करता है, इम्पेरियलिज्म एक्सपेंशन करने का दिख रहा है. एट द सेम टाइम फासिस्ट में एम्ब्रेस अ फॉर्म ऑफ इंटरनलिज्म बेस्ड ऑन इधर रेशियल और आइडियोलॉजिकल सॉलिडरिटी अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. सी, एट द सेम टाइम क्या है, फासिज्म में एम्ब्रेस अ फॉर्म ऑफ इंटरनलिज्म बेस, ये एक बेस भी तैयार कर सकता है ताकि पूरा इंटरनलिज्म जो भी काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हो. राइट, और वो आइडियोलॉजी सिर्फ अपने बाउंड्री तक ना रहे, इट गोज आर बियॉन्ड आवर बाउंड्री ऑल्सो. यूजुअली फासिज्म एम्पावर्स ओपन
male supremacy through something. It may also promote female solidarity, new opportunities for women of the privileged nation or race. See, फासिज्म में क्या है, सिर्फ मेल तो सुपीरियर बोला ही है उन्होंने, बट सिर्फ मेल सुपीरियर नहीं है, यहाँ पे फीमेल को भी एंकरेजमेंट दिया जा रहा है, इवन फीमेल को भी प्रमोट किया जा रहा है, ताकि इवन वीमेन कम आउट विद द न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ओके, ऑफ द प्रिविलेज नेशन और रेस. लाइक जो बड़े घर की लेडीज़ वगैरह हैं उनको उनके लिए दे आर कमिंग आउट विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़. नेक्स्ट इज द democracy. Democracy is a means for the people to choose their leaders and to hold their leaders accountable for their policies and their conduct in office. See, democracy क्या है? Democracy is a means for the people to choose their leader. डेमोक्रेसी में क्या है, जैसे अपन इंडिया में भी फॉलो द डेमोक्रेसी. क्या है, अपन अपना लीडर अपन खुद चूज़ करते हैं, सो दैट ताकि वो अपनी भलाई के लिए सोचें. So democracy is a means for the people to choose their leader and to hold their leader accountable for their policies and their conduct in office. So that leaders accountable for their, ताकि लीडर उनके हिसाब से थोड़ा सा पॉलिसी बनाए और वो ऑफिस में सब कुछ अपना काम लोगों के हित के लिए करे, लोगों की भलाई के लिए करे. The people decide who will represent them in parliament and who will head the government at the national and local level. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी लोग हैं अपन लोग डिसाइड करेंगे अपना लीडर कौन बनेगा. जो लीडर बनेगा वो अपने को रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में, राइट. ठीक है, फिर गवर्नमेंट कौन चलाएगा, अपनी लोकल लेवल नेशनल लेवल पे भी अपना लीडर कौन बनेगा, ताकि अपना सारा काम हो सके, आम जनता को मदद मिल सके. दे डू सो बाय चूजिंग बिटवीन कॉम्पिटिंग पार्टीज इन द रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ये अपन कैसे चूज़ करते हैं सब कुछ, थ्रू एन इलेक्शन. लाइक वी हैव अ फेयर, वी ट्राई टू डू अ फेयर इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन, अपने यहाँ पे फ्री इलेक्शन, रेगुलर फेयर इलेक्शन चलते रहते हैं सब पार्टियों के बीच में. अभी 4-5 जन एक वार्ड से खड़े होंगे तो उसमें से एक ही जीतेगा, भले ही वो 4-5 जन अलग अलग पार्टी के रहते हैं, बट उसमें से एक ही कोई तो जीतेगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं. देन सोशलिज्म. सोशलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ओनरशिप एंड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग of all major industries. सोशलिज्म क्या है, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे पब्लिक के पास ओनरशिप रहती है, राइट. लाइक कैरेक्टराइज बाय पब्लिक ओनरशिप एंड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ऑफ ऑल मेजर इंडस्ट्रीज. और सब कुछ मेजर इंडस्ट्रीज का प्लानिंग सबके साथ मिलके होता है. एग्जाम्पल उन्होंने दिया है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड एनर्जी, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, अग्री बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, द मीडिया एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. अभी उसके साथ कौन कौन आता है, पब्लिक ओनरशिप, किसके क्या क्या पब्लिक ओनरशिप में क्या क्या आता है, और इसका प्लानिंग एट अ मेजर बड़े लेवल पे होता है. लाइक सेंट्रलाइज प्लानिंग रहता है इसको, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एग्री बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, मेडिकल फैसिलिटीज़. अंडर कैपिटलिज्म, these giant enterprises dominate the economy but are privately owned and operated for the purpose of generating wealth for their owners, be extracting it from labor produce. See, under capitalism क्या है, these giant enterprises dominate the economy. कैपिटलिज्म में क्या होता है, ये जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस व्हाट दे डू, दे डोमिनेट द इकोनॉमी बट आर प्राइवेटली, और सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड रहता है. और ऑपरेट क्यों करते हैं, ताकि दे जनरेट मोर वेल्थ फॉर देमसेल्फ. और फिर वो लेबर्स भी रहते हैं उसमें जो जॉब वगैरह करते हैं एंड ऑल. सोशलिज्म टर्न्स दिस अराउंड सो दैट द क्लास दैट प्रोड्यूसेस द वेल्थ कैन कलेक्टिवली डिसाइड हाउ इट विल बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. सोशलिज्म में क्या होता है, दे ऑल जो भी वेल्थ आती है वो सब एक साथ कलेक्ट करते हैं एंड डिसाइड कि अपन सबके बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, गांधीज़म. गांधीज़म इज़ अ बॉडी of ideas and principles that describes the inspiration, vision and the life work of Mahatma Gandhi. See, Gandhism क्या है? Gandhism is a body of ideas and principles. Gandhism क्या है? ये principles that बोलते हैं इंस्पिरेशन मिलता है विद द वर्क ऑफ महात्मा गांधी. लाइक महात्मा गांधी का कितना स्ट्रॉन्ग विजन था, कितना इंस्पिरेशन, उनका लाइफ कितना इंस्पिरेशन में से भरा था.
राइट। अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है गांधी जी से। तो उनके काम के लिए उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, आइडियोलॉजीज दिए हैं, उस पर ये गांधीज़म बेस्ड है। इट इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड with his contribution to the idea of non-violence resistance, sometimes also called civil resistance. See, गांधी जी क्या थे? गांधी जी वायलेंस वगैरह उनको पसंद नहीं था, तो वॉट एवर ही डिड विद द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। वो नॉन वायलेंस से सब कुछ करते थे। कम्युनिज्म, an ideology based on the communal ownership of all property and classless social structure with economic production and distribution to be directed and regulated by means of an authoritative economic plan that supposed embodies the interest of the community as a whole. See, यहाँ पे क्या है? कम्युनलिज्म क्या है? ये एक आइडिया है दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉमनली ओनरशिप। हाँ, सब प्रॉपर्टी जो भी क्लासलेस सोशल स्ट्रक्चर है इस पे सारा ये बेस्ड है। और डिस्ट्रीब्यूशन टू बी डायरेक्टेड एंड रेगुलेटेड बाय मीन्स ऑफ, अभी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सब कौन करेगा? जिसके पास अथॉरिटी है और जो सबसे बड़ा हेड रहेगा वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वेल्थ वगैरह जो भी है वो सब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। देन नाजिज्म, दैट इज नेशनल सोशलाइजेशन। दिस आइडिया ओरिजिनेटेड एज अ nationalist movement in European countries after World War I and refers to the movement of National Socialist German Workers Party under Adolf Hitler. सी, हिटलर के बारे में तो अपन सबने पढ़ा ही होगा, राइट। हिटलर क्या था? वो जो भी करेगा तो सब उसके हिसाब से पूरा कंट्री चलेगा, राइट। तो ये नाजिज्म, ये आइडियोलॉजी कब आई? ये यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। कब? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। और ये किसने लाया था? It was run by a National Socialist German Worker Party under Adolf Hitler. हिटलर ने ये चालू किया था, दैट इज नाजिज्म। नाजिज्म reflects liberalism, democracy, the rule of law and the human rights and stresses the subordinates of the individual to the state and strict obedience to leader. नाजिज्म क्या है? वो लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, रूल्स ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड स्ट्रेस, इस पे उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। उसका क्या इम्पोर्टेंस था? यू शुड स्ट्रिक्टली फॉलो योर लीडर। जैसे हिटलर को सबने फॉलो करने का। हिटलर के अगेंस्ट अगर आपने कोई आवाज़ उठाई तो ही विल बी डेड। इट एम्फसाइजेस द राइट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टू रूल द वीक। जो स्ट्रॉन्ग है वो रूल करेगा, वीक रूल कभी नहीं कर सकता। द इनइक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रेसेस एंड द रेशियल सुपेरिटी ऑफ वाइट एंग्लो सेक्शन। यहाँ पे क्या हो गया? द इनइक्वल, यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल सारा इनइक्वलिट बेसिस पे चल रहा है, रेसेस पे चल रहा है। रेशियल सुपेरिटी, लाइक सुपेरिटी पे जो वाइट लोग हैं, जो उनको वाइट एंग्लो बोला है, आर्यंस, वो सुपीरियर माने गए हैं। बाकी सब नीचे नीचे नीचे, जो सुपीरियर है वो रूल करेंगे। बाकी आप में क्वालिटी भी रहेगी, बट आप यू बिलोंग टू लो क्लास, सो यू कांट डू एनीथिंग। मूविंग टूवर्ड्स द 10th पॉइंट, anarchism. Anarchism considers the state undesirable, unnecessary, harmful and instead promotes a stateless society or anarchy. यहाँ पे अनार्चिज्म में क्या बोला है? आपका जो भी स्टेट है वो क्या है? वो अनडिज़ायरेबल, मतलब किसी को चाहिए ही नहीं वो स्टेट। अननेसेसरी है, हाँ, हार्मफुल है, और हार्मफुल है आपका स्टेट। इंस्टेड आप ऐसी सोसाइटी बनाओ, ऐसी सोसाइटी प्रमोट करो जिसमें स्टेट जो स्टेटलेस है। ऐसा हो सकता है क्या? Anarchists seek to diminish or even eliminate reliance upon authority in the conduct of human relations, but thus have widely disagreed on what additional criteria are essential or beneficial to anarchism and human society. See, anarchists क्या है? Anarchists seek to diminish or even eliminate reliances upon authority, और जो human relation है, but they have disagree on what additional criteria are essential or benefit to anarchism and human society. Anarchism is usually identified as the most anti-authoritarian of all political ideologies. See, anarchist क्या है? ये anti-authoritarian है। ये क्या है? anti-authoritarian है।
ये लीस्ट सबसे प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज़ हार्मफुल टू यू, राइट। लाइक बिना सोसाइटी में क्या है, यहाँ पे ह्यूमन को इम्पोर्टेंस कम से कम दिया जा रहा है, और जो स्टेट है उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे, राइट। क्योंकि आपने स्टेट को सीधा अनडिज़ायरेबल हार्मफुल बोल दिया आपका स्टेट आपने, राइट। अगर स्टेटलेस रहेगा तो क्या है, वो अच्छा रहेगा, ये गलत थॉट है ना। सो ये लीस्ट अपनाया जाता है एनार्चिज्म, ये लास्ट में ये एंटी अथॉरिटेरियन बोल दिया इसलिए उसको, ऑफ ऑल द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। सो विल वाइंड अप द टुडेज लेक्चर हियर, इन नेक्स्ट lecture we'll study the end of ideologies. Thank you.